नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 172वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जैसे कि हमारी परंपरा है, हम अपने प्रत्येक एपिसोड को शुरू करने के पहले सरस्वती वंदना के माध्यम से अपना ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में ये प्रस्तुति कर रही हैं प्रोफेसर उषा साहनी। आप मेरठ के शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य पिछले 1.5 दशक से कर रही हैं और इसी के साथ साहित्य की विभिन्न विधाओं में नियमित रूप से लेखन से जुड़ी हुई हैं और सृजनात्मक साहित्य के माध्यम से आपने न सिर्फ कविताओं के क्षेत्र में वरन कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी अपनी एक पहचान बनाई है। आपके उपन्यासों के साथ साथ 4 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और एक कविता संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है। शेक्सपियर आपके प्रिय साहित्यकार हैं और उन्हीं के साहित्य पर, नाटकों पर आपने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। कम्युनिकेशन टुडे के साथ आपका लंबा जुड़ाव और उसके एडिटोरियल बोर्ड की एक्टिव मेंबर के रूप में आप हमारे साथ लंबे समय से जुड़ी हुई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। डॉक्टर उषा साहनी। धन्यवाद सर। माँ शारदे के श्री चरणों में 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना. Good evening to one and all present here. A very warm welcome to this 172nd webinar of this webinar series. I'm very much happy to announce that we have already completed 100 webinars under the umbrella of Communication Today, the journal that has been started by the all genuine efforts of Professor Sanjeev Bhanawat, who has not turned any stone unturned to come up with each and every dimension of media education. This journal is a bilingual journal which has served all the academicians, the practitioners, the research scholars, and the students to work upon the different subjects of media education. Professor Bhanawat has also done a lot of tasks so that special issues can be taken out, and more than 11 issues were the special issues, a big Bibles of those eminent topics from media education. Apart from that, on 2nd of October 2020, when this webinar series was started, at that time, it was under the umbrella of Communication Today. Professor Bhanawat and I thought that yes, this can be one of the things which can reach up to maximum people so that they can have a taste of all the dimensions of media education. Professor Bhanawat has worked so hard that he could bring more than 450 eminent speakers across the nation and international speakers also together. After completing 100 webinars under the umbrella of Communication Today, Professor M.N. Huda joined hands with Professor Bhanawat to start another century. And it was with the joint venture of Bharati Vidyapeeth, New Delhi. Today, we are doing this 172nd webinar, which has the topic, which is very contemporary once again. And this is the speciality of Professor Bhanawat, that he has not left any contemporary topic to be discussed on this platform. Whatever comes new
need of the hour, he brings people who are connected and who are expert in those topics to come forward and share their expertise so that the people can get the right knowledge and right insights of that very dimension. So today we are going to discuss on AI-powered digital marketing trends and tactics in 2025 and beyond. The eminent speaker today who has been invited is Shri Kapil Bhargav, founder and chief marketing strategist from ClickVeda, Gurugram. The complete intro and the intro of the entire topic will be given by Professor Bhanawat. I was just wondering, and I was just talking to Kapilji, and whatever communication we had during the time of 5:30 to 6, that is our tea time, chit chat time, I really felt that this is the place where we have reached to understand that earlier there was a human touch. There was a person who was able to have those connections, those, feelings and everything along with the other person. But nowadays, when we are talking about this AI, chat, GPT, or whatever, number of platforms are there. I'm not going into the details, but I could really sense that once again, why are we expecting these machines to be that wherein we can have that human touch again? People are happy to discuss that the machines, these chat GPT and AI platforms, every platform is coming up with the answers that are related to your human psychology. If this is what we people were looking forward, that machines are going to help the human lot for progress, then why we are shifting back to that human thing only? This is a very chaotic thing, but of course we have been benefited in a lot of ways through these AI platforms, and that's why Professor Bhanawat decided to come along with this topic and discuss and know that what are the positives, because any coin has got two sides. So looking forward to have those ideas and those expertise from Kapilji, so that we can understand that how it is more beneficial. Of course, the other side is also there, but we need to understand the benefits of this. Thank you so much. And I'm handing over the platform to Professor Bhanawat once again. Thank you, sir. चलिए, बहुत बहुत आभार डॉक्टर उषा। और एक उपलब्धि और, हाल ही में डॉक्टर उषा साहनी को प्रोफेसर के रूप में प्रमोशन मिला है, और प्रोफेसर बनने के बाद उनकी ये पहली वेबिनार है, तो उनको भी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। और अब जैसी कि हमारी परंपरा है, हम किसी भी आयोजन के प्रारंभ में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे एक्सपर्ट स्पीकर हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। क्योंकि आभासी मंच पर ये सारा कार्यक्रम संचालित हो रहा है, तो हमने एक विकल्प तलाश किया है, क्यों नहीं इस आभासी माध्यम से ही उनका स्वागत सत्कार किया जाए। लेकिन इसके साथ, जैसा अभी डॉक्टर उषा ने कहा कि मानवीय भावनाएं कहीं महत्वपूर्ण होती हैं उस मशीनी दौर में, तो वो भले ही आभासी मंच पर है, लेकिन उन सब के साथ हमारी एक गहरी आत्मीयता जुड़ी हुई है। और मैं अनुरोध करूंगा भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर प्रियंका सिंह से कि वे आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री कपिल भार्गव का ई बुके भेंट करके स्वागत करें। प्रियंका जी, इस समय न सिर्फ चलिए पहले ये स्वागत हो जाए, उसके बाद इनका परिचय। जी सर, बिल्कुल सर। We are very grateful to have you on this platform, and this is just an honor of respect and gratitude from our side. You are a great welcome on this platform, sir. Thank you so much. चलिए, इस स्वागत के बाद जैसा मैं कह रहा था, प्रियंका जी भारतीय विद्यापीठ में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य कर रही हैं। रेडियो पॉडकास्टिंग आपका प्रिय विषय है, जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन किया है, और इसी विषय पर आप पीएचडी के लिए भी पंजीकृत है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से आपने अपनी मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की, और पिछले कुछ वर्षों से भारतीय विद्यापीठ के साथ मीडिया कर्मियों की एक नई पीढ़ी को तैयार करने में अपना समर्पित भाव से प्रयत्नशील है। एक शिक्षक के रूप में जो दायित्वों का निर्वहन होता है, अकादमिक आयोजनों के साथ जुड़ाव, उसमें भी आप जुड़ी हुई हैं। और जब से हमने भारतीय विद्यापीठ के साथ सिलसिला शुरू किया है, ये एक तरह से 72वीं वेबिनार है भारतीय विद्यापीठ के साथ। इन सभी वेबिनार्स का कुशल संचालन और जो उसका सारा तकनीकी पक्ष है, और जो भी उसके अंदर और सुविधाएं अपेक्षित हैं, उन सभी का एक तरह से नेतृत्व
प्रियंका जी ने किया है। आज आपके कॉलेज का बड़ा हेक्टिक डे है, बहुत अधिक व्यस्तताएं और प्रेशर है, उसके बावजूद आपने हमारे इस वेबिनार की स्मूथ रनिंग के लिए जो सारे प्रयास किए, ये इस विषय के साथ, इस आयोजन के साथ, इस आंदोलन के साथ आपके गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। डॉक्टर उषा ने जो बात कही थी, इस वेबिनार के संदर्भ में इतनी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि हमारे सारे डेलिब्रेशंस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। ये सारे डेलिब्रेशंस को हम रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद अपने चैनल पर इसको हम अपलोड करते हैं। क्योंकि अब ऑफलाइन का दौर समाप्त हो गया, ऑफलाइन का काम शुरू हो गया है, ऑनलाइन का दौर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो जो मित्र अपने समय की प्रतिकूलताओं के कारण हमारे साथ नहीं जुड़ सके, वे अपनी सुविधा से जुड़े, इन सारे जो डेलिब्रेशन है इनको सुने और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स के माध्यम से इस विचार यज्ञ को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। जैसा कि बताया गया, आज का विषय है AI पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स एंड टैक्टिक्स इन 2025 एंड बियॉन्ड्स। और हमारे साथ इस विषय पर अपना अनुभव साझा करने के लिए हैं श्री कपिल भार्गव जी, जिनका विस्तार से परिचय जब मैं उन्हें अभी आमंत्रित करूंगा वक्तव्य देने के लिए, उस समय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसा अभी बात हुई कि हमारी पूरी दुनिया आज AI में सिमट गई है, हालांकि अब कुछ ऐसे विचार भी सामने आ रहे हैं जो इस AI को लेकर के संवेदनशील है। आज के ही समाचार पत्रों में आपने शायद पढ़ा हो कि फिजिक्स में इस वर्ष, पिछले वर्ष जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जिनका AI के क्षेत्र में भी कंट्रीब्यूशन है, वे स्वयं इससे हतोत्साहित हैं, व्यथित हैं और उन्होंने ये कहा है कि इस पर निर्भरता कम की जाए, नहीं तो आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि हर तकनीक के साथ अपनी नई चुनौतियां हैं, नई संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में AI को लेकर के आज विश्वव्यापी जिस तरह से चिंताएं हैं, हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक तरह से उसमें सहभागिता की थी और एक पूरा उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, AI सिक्योरिटी और AI फॉर गुड, किस तरह से हमारी मानव सभ्यता के लिए वो सहायक हो सकते हैं। लेकिन आज ये भी आशंका प्रकट की गई, वो भी एक मैंने खबर पढ़ी किसी अखबार में, कि अब ये जो आपके चैट बॉक्स है स्वयं तथ्य गढ़ने लगे हैं। ये आश्चर्य की बात है कि कहा यह जाता है कि जो कुछ नेट पर उपलब्ध है, वेबसाइट्स पर है, वहीं से ये सारी चीजें ले रहा है, लेकिन अब उससे भी आगे बढ़कर जिस तरह की प्रोग्रामिंग हो रही है, ये अपने तथ्य गढ़ने लगा है। ऐसी स्थिति में आने वाला समय कितना चुनौतीपूर्ण होगा, दुविधापूर्ण होगा, सुविधाओं के साथ साथ इस पर हमें विचार मंथन करना है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद AI हमारे जीवन संस्कारों में, जीवन शैली में एक तरह से पूरी तरह प्रविष्ट हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक निर्णायक शक्ति बनकर के कहीं किसी रूप में उभरा है। तकनीक के उस युग में जहां नई नई खोजें हो रही हैं, तो भला डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र कैसे उपेक्षित रह सकता है। AI नए आयाम छू रहा है डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में भी, और अभी 2025 में है जहां इन सारी चीजों को हम देख रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं होंगी, वो कपिल जी अपने अनुभवों के आधार पर आपके साथ शेयर करेंगे। AI एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को सोचने, समझने और निर्णय लेने के लिए मनुष्यों की तरह काम करने के लिए तैयार किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग में इसका जो उपयोग है वो उपभोक्ता का व्यवहार किस तरह का है वो समझने का प्रयास किया जा रहा है। आज ऑनलाइन में आपकी कोई चीज गोपनीय नहीं है, सब कुछ इन मशीनों के हाथ में है। आप कहाँ क्लिक करते हैं, आप किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ तो चेक हो रहा है और आपके उसी लाइक्स और कमेंट्स के आधार पर आपकी उस उपभोक्ता व्यवहार को कहीं जज करके आगे फिर पूरी उसकी मार्केटिंग जो रणनीतियां हैं वो जाती हैं, उसी के अनुरूप सामग्री तैयार की जाती है, डेटा का विश्लेषण किया जाता है और विज्ञापन को स्वचालित करने और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनलाइजेशन वाली बात कहीं ना कहीं जुड़ गई है। चैट बॉक्स और ग्राहक के साथ संवाद अब 24 आवर संभव हो गया है। आप किसी भी समय, जब मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलता हूं, वहां वो कैरेक्टर आकर के मुझसे तुरंत पूछता है व्हाट हेल्प कैन आई एक्सटेंड फॉर यू। तो आप देखिए 24 घंटे में जब आप चाहें उससे बात कर सकते हैं।
और अपने जो भी आपके मन में शंकाएं हैं उनका समाधान प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कंटेंट किस तरह से निर्मित किया जा रहा है, इसमें एआई की एक तरह से प्रेजेंस हो गई है। वॉइस और वर्चुअल जो इम्पैक्ट है वो कितना बढ़ता चला जा रहा है। मुझे लगता है पर्सनल असिस्टेंस अभी आपका मोबाइल हो गया है, जहां टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप बोल करके भी बात कर सकते हैं। तो ये मार्केटिंग के क्षेत्र की दुनिया को भी किसी तरह से बदल देगी। तो किस तरह की रणनीतियां तैयार की जाए, किस तरह के हमको लेसन्स मिलेंगे, अनुभव मिलेंगे, इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो मुझे तो लगता है डिजिटल का भविष्य अब एआई के हाथ में है और इसके लिए हम तैयार हैं। शायद यही आज के इस पूरे जो हमारा आयोजन है उसका वक्तव्य है, उसका भाव है। और मैं अनुरोध करूंगा कपिल भार्गव जी से। कपिल जी का इस क्षेत्र में लगभग 1.5 दशक का अनुभव है और आप बड़ी तल्लीनता से, समर्पित भाव से, पूरी निरंतरता के साथ, मनोयोग के साथ एक तरह से काम कर रहे हैं। आपने क्लिक वेदा नाम से अपनी एक संस्था बनाई है, उसकी अपनी एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से वो एक पूरी मुहिम या आंदोलन चला रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो एक तरह से आप भारत के अनुभवी डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने, जैसा मैंने कहा कि लगभग 1.5 दशक का आपका अनुभव। क्लिक वेदा ब्रांड के संस्थापक और मुख्य रणनीतिकार हैं। देश विदेश में हजारों जो प्रोफेशंस हैं, वहां जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको आपने डिजिटल सफलता की जो बेसिक्स है, उसके रहस्य हैं, उनको एक तरह से सिखाया है, प्रशिक्षित किया है। उन्होंने विभिन्न कंपनियों को अपने परामर्श, रणनीतिक परामर्श देते हुए उनके कर्मचारियों, उनके फैकल्टी मेंबर्स, उनके मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षित किया है और उनके जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने में किस तरह से डिजिटल टूल्स सहयोगी हो सकते हैं, उसको भी उन्होंने एक तरह से अपनी ट्रेनिंग का पार्ट बनाया है। अपने इंडस्ट्रीज को, अपने बिजनेस को और अधिक प्रमोट करने के लिए किस तरह से इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग हो सकती है, उस दिशा में आपकी विशेष दक्षता है। किस तरह से सोशल मीडिया कैंपेन्स तैयार किए जाए, किस तरह से अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को बढ़ाया जाए और किस तरह से कस्टमाइज्ड मार्केटिंग प्लान्स को इंप्लीमेंट किया जाए, इन सब क्षेत्रों में वे सिद्धहस्त हैं। उनको क्रियान्वित करने के लिए निरंतर कुछ नया सोचते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं। तो ऐसे ही प्रयोगशील, प्रयोगधर्मी विशेषज्ञ आज हमारे साथ हैं। इन्होंने एक रणनीतिकार, शिक्षक और स्वतंत्र सलाहकार के रूप में लगभग हर जो एक प्रमुख उद्योग है और उसके जो ब्रांड्स हैं उनके साथ आपने काम किया है। वेबसाइट डेवलपमेंट से लेकर के व्यवसाय को ग्लोबल स्तर पर प्रसारित करने के लिए आपने लगभग 575, आप 600 के आसपास मान लीजिए, से अधिक व्यवसायों को स्थापित किया है और लगभग 34,000 से अधिक प्रोफेशनल्स को आपने मार्गदर्शन दिया है। उनकी विशेषज्ञता और नेतृत्व के कारण आज वे डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में एक प्रभावशाली नाम बन चुके हैं, जिनकी सोच कई तरह के व्यवसायों को नित्य नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही है। मैं अनुरोध करूंगा भाई कपिल भार्गव जी से कि वह इस अवसर पर अपने कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें। कपिल जी। My sincere good evening and namaskar to everyone. First of all, I would like to thank everyone, Professor Usha, Dr. Sir, Dr. Sanjeev Sir, and everybody present. आपने काफी अच्छा इंट्रोडक्शन किया है, पर मैं सोचता हूँ आई एम जस्ट डूइंग द राइट वे और कोशिश करते हैं कि और भी चीजें सीखें सर। और आपसे मुझे काफी चीजें सीखने को मिली हैं एंड कोशिश ये करूंगा कि साथ में और भी चीजें सीखने को मिले। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं which are basically this field is not about having some kind of invention. Basically we are discovering the things. तो वो सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पास हैं और मेरी सभी जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सभी से हस्तबद्ध प्रार्थना है कि एक सेशन वन वे ना रहे कर हम एक कम्युनिकेशन अगर करें वेयर बाय एवरीबॉडी इज मिंगलिंग एंड पार्टिसिपेटिंग सो दैट वी कैन हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑल टुगेदर।
तो जितने भी मेरे सेशंस रहे हैं वो कोशिश यही है एक अच्छा कम्युनिकेशन रहे ताकि हम एक कंक्लूजन तक पहुंच पाए। तो ये मेरी एक विचारधारा है और मैं आई एम वेरी मच होपफुल कि आप सब यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे और ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। So to start with, I'm just going to share my screen. Can you please unmute Dr. Sheel Nidhi? Yes, please. Yeah, sorry. So, yeah. Can you please share with me the host or co-host rights so that I can present? Sir, shared. Kindly check, sir, shared. I made you a presenter. Yeah, thank you so much. So I hope everybody can see the screen, right? Okay, so basically this is the topic that we are going to discuss. It is AI-powered digital marketing trends and tactics in 2025 and beyond. So basically, I want to discuss lot many things. It is about the behavior, it is about the nature, and all the things which we already possess. So to begin with, I want to have the icebreaker done. तो जितने भी लोग यहाँ पे present हैं, from the morning till now, what is the last thing that you did with AI today? Can anybody tell me what is the last thing that you did with AI today? Anybody who would like to speak up, who would like to write in the chat box? तो आपने आखिरी वो क्या चीज है जो आपने AI की मदद से सॉल्व किया या प्रोक्योर किया? Anybody? Yes. I'm looking for some answer. Sir, I have shared my screen and shared a bouquet to you, I guess. Okay, yeah, perfect. Absolutely correct. That is the very recent, very बहुत अच्छी बात है. That's good, ma'am. Anything else? Very nice. Thank you so much. Yeah, that's both. That was a spontaneous answer. I like that. किसी ने और कुछ किया AI के साथ? कैसे जीवन आसान हुआ या क्या चीज ऐसे करी? Anybody else? Any from the candidates? Okay, so आंसर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. Answer in the chat box. I have created a photo. अच्छा मैम, I cannot see the chat box actually. 1 minute. Received 2 answers from the candidates. Sir, I create Okay. from Udit and Manisha said make lesson plans. Okay, you create a photo and make lesson plan. Okay, that's great. So आप बता सकते हैं मनीषा एंड सौरभ कि जो भी लेसन प्लान है उसमें आपका आईक्यू और आपका इंटेलेक्ट कितना यूज हुआ? Can you tell me how much percentage of your learning and the intellect that you have designed, that you have used to design that lesson plan? How much of that? Yes, generate the image. Okay, thank you, Pranjal. Good answer. तो आपने जितना भी काम किया है उसमें आईक्यू और इंटेलेक्ट आपका कितना यूज हुआ बता सकते हैं? आपने प्रॉम्प्ट लिखा होगा और प्रॉम्प्ट के लिए आइडियाज लिखे होंगे, तो 100 में से कितना परसेंटेज ऐसा हुआ कि आपने अपना आईक्यू और इंटेलेक्ट यूज किया? वुड लाइक टू आंसर? Very less. Okay, right. Absolutely true. Sort of very less. Not much. We only wrote keywords. Okay, great. Okay, perfect. तो हम वही चीज आज डिस्कस करना चाहते हैं. IQ is 70%. Okay, nice. That's good. So thank you for all the answers. I want to touch that aspect now. So I'll share the screen once again. Yes. So that was the first thing. Now I want to say this particular thing and I want to discuss that effectively.
that AI is already shaping our choices. So this is the heading part which I want to discuss. And if we do not learn to manage it now, this will manage us. So I'm not in favor or not against the artificial intelligence. I'm just deploying AI to ease my life. And that is why I'm here for. If we do not learn to manage, it will manage us. So this is the agenda for the day. And we have about around 40 to 45 minutes to discuss many things. So the first, we will discuss about the evolution of marketing with AI, core concepts, 5-pillar AI framework. I have some kind of case studies from my own experiences. Then I will discuss the future trends and tactics. And last of all, we have got the takeaways. So इसको इस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं कि शुरुआती 20 से 25 मिनट I will have the discussion and I will give you again 2 to 3 minutes to discuss your doubts and queries. इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. तो नेक्स्ट वी कम टू, तो जिस प्रकार इवोल्यूशन हुआ था, इवोल्यूशन ऑफ द मैनकाइंड और एनी पर्टिकुलर स्पीशीज वी टॉक अबाउट, तो वो इवोल्यूशन वाज अ theory that was Charles Darwin theory. In the same manner, AI को भी evolve होने में बहुत सारा समय लगा. So here I have got some kind of comparison based on traditional and AI powered marketing. तो traditional marketing और AI powered marketing को compare करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि marketing क्या होता है. Anybody who would like to tell us what is marketing? वो इसीलिए क्योंकि हम AI पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या होता है. एनीबडी वुड लाइक टू टेल मी द आंसर व्हाट इज मार्केटिंग, और मार्केटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? इफ एनीबडी वुड लाइक टू टेल मी, preferably among the candidates who are present here, who are either the students or attendees, who would like to tell me कि मार्केटिंग क्या होता है, बता सकते हैं? Yes, anyone? Any of the person who would like to answer, including the faculty members, staff members, anybody? Yes, please. So I can see Ms. Hanshika over here. So Hanshika would like to answer. Okay, Mr. Saurav says promote any product or concept or generate profit, to generate profit. Okay, that's good. Nice. Good evening, sir. Anybody else? Hi, good evening, Ji. Tell me. Marketing is the act of acquiring, satisfying and retaining the customer. And marketing को हिंदी में हम विपणन कहते हैं. जी, बहुत बढ़िया. Very nice. Good answer. Thank you Thank so you, sir. much. So you already had a brilliant shot. So this is basically, मैं एक Thank you, चीज sir. यहाँ पर बताना चाहूंगा. Thank you, दीप्ति. मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा. एक बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है कि मार्केटिंग को प्रचार कहा जाए. I will not agree to this, क्योंकि प्रचार is one of the technique of the marketing. मार्केटिंग को हम लोग विपणन कहते हैं, in the same manner कि मैनेजमेंट को प्रबंधन. तो जो प्रचार होता है उसको हम ब्रैकेट, इट इज अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम अवेयरनेस पर्टिकुलर फनल में हम लेते हैं. थैंक यू फॉर दिस. एब्सोल्युटली यस. सो दैट इज मार्केटिंग. नाउ हम डिजिटल मार्केटिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. कि मार्केटिंग हमने देखा कि अपने ही प्रोडक्ट को, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा. आई वॉन्ट एवरीबडी टू हैव अ पेन एंड पेपर रेडी, बिकॉज यू विल नॉट फाइंड इट ओवर द इंटरनेट. This is my own experience which I am telling. So marketing is a set of activities which start with need generation and ends with retention. तो मार्केटिंग का मतलब है कि नीड को जनरेट करना और रिटेंशन तक बने रहना, इसको हम मार्केटिंग बोलते हैं. तो आज के युग की मार्केटिंग की डेफिनेशन ये है, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम उन लोगों को हमें
कैप्चर करना है, उन लोगों को हमें फनल में एग्जिस्ट करवाना है जिनको हम नहीं जानते और वो हमें नहीं जानते. So gone are the times that we were having the face-to-face interaction, we were having some glances exchange, and we were discussing on that particular subject. But rather, now it is the time that we have to reach out to the prospect audience, that too nobody is aware. और उस चीज को हम ना ही केवल हमें उनको कन्विंस करना है, बल्कि उनको अपनी चीज से प्रभावित करके कन्वर्ट करना है. तो ये हमारा एस्पेक्ट है which I want to discuss. So I hope that is understandable by everyone. Now AI powered की जरूरत क्यों पड़ी? AI powered की जरूरत इसलिए पड़ी हमें क्योंकि 24 घंटे जो बनाए गए हैं कैलेंडर में, डे में, that will remain the same throughout. लेकिन today with the fast changing world, because the change is inevitable, I have a question, so we can say that marketing is creating needs and providing those needs. I would say, Pranjal, एक विषय हम पढ़ते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हाँ, और उसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है सप्लाई डिमांड. तो मार्केटिंग का अर्थ है कि मार्केटिंग और सेल दे आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. तो मार्केटिंग में हम लोग नीड को जनरेट करते हैं. पहले ये होता था कि नीड होती थी, हम प्रोडक्ट बनाते थे और उसकी थर्स्ट को हम क्वेंच करते थे या सप्लाई को डिमांड से मीट आउट करते थे. लेकिन आज हमारा समाज, आज डिजिटल के माध्यम से हमको नीड को क्रिएट करना पड़ता, क्योंकि सभी के पास जितने भी लोग हैं, दे हैव अंडरस्टूड दैट द लाइफ इज बियॉन्ड रोटी कपड़ा मकान. नाउ लोगों की नीड्स बदलती जा रही हैं, जिस तरीके से इन्वेंशन हो रहे हैं, जिस तरीके से एआई के चैनल्स आ रहे हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स आ रहे हैं, तो नीड भी एक डिलेमेटिक होती जा रही है. और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आज उनको ये चीज चाहिए, कल कुछ और चाहिए. तो उनकी जितनी भी फ्लक्चुएटेड नीड्स हैं, उनको मीट आउट करने के लिए मार्केटिंग इज ऑल्सो गेटिंग मॉडिफाइड. तो वेरी वेल सेड बाय संजीव, प्रोफेसर संजीव सर, कि बिल्कुल आधुनिकता का जमाना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि लॉजिक और कॉमन सेंस, सर दो ही चीजें हैं जो शुरुआत में भी इस्तेमाल होंगी, आगे भी होंगी और अभी भी. सो आई थिंक आई हैव गिवन यू द आंसर दैट इट इज अ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज where we understand the market, we generate the needs, and we try to retain the customer for a very long period. Right? So coming to the next point, कि डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ मैं ऐसे कहूंगा कि थैंक यू सो मच प्रांजल फॉर बीइंग कम्युनिकेटिव. सो ऐसे में कहूंगा कि हमें रीच आउट करना है उन बायर्स को जिनको हम नहीं जानते. तो घंटे तो 24 ही रहेंगे, लेकिन हर एक क्लाइंट को, हर एक इंडिविजुअल को एफिशिएंसी चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए. अब प्रोडक्टिविटी अगर 100x की डिमांड है, तो उसको 100x को हम मीट आउट करने के लिए वी हैव टू पुट इन 150x एफर्ट्स. अब उन चीज को प्रोक्योर करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग है वो सक्षम ज्यादा है, लेकिन उसके पास समय की अभाव है. अब उस समय को अभाव करने के लिए वी ब्रिंग इन वर्चुअल मशीन्स. हमने रोबोट्स का निर्माण किया और जितनी भी इंटेलिजेंस हमारे पास है, we try to foster the information to all the virtual machines. Now virtual machines, they are called the robots. Now उनको हमने इंटेलिजेंट बनाया ताकि हमारे हिस्से का काम वो कर सके. Now इसका मतलब ये नहीं है कि जो AI है वो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा. No, it is not. Rather, we have delegated the duties just like we delegate to the lower management. So in the same manner, we have done so. Now, there are some kind of nuances and some kind of FAQs and other things as well, which I want to clear. So traditional marketing and AI-powered marketing that we were discussing. So I'll share the screen once again. And this is the point, that in the manual, in the traditional marketing, we have manual analysis. Now we have predictive analysis.
हमारे पास कैंपेन जितने भी होते थे फ्लायर के रूप में होते थे, न्यूज़पेपर कटिंग्स, मीडिया पब्लिकेशंस. नाउ दीज आर कॉल्ड स्टैटिक कैंपेन्स, बट नाउ वी हैव पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस. इसका लाइव एग्जांपल इज, if you start ordering with Swiggy or Zomato and you order in a sequence for 3 to 4 days, चौथे दिन अचानक उसी टाइम पे आपके पास पॉपअप जनरेट होगा कि आर यू नॉट हंग्री टुडे, क्या आप भूखे नहीं है? Now that is called the personalized experience. So immediately psychology says, psychology ये कहेगी that you should order. So in the same manner the pop-up ने क्या किया? पॉपअप ने एक क्यूरोसिटी को जन्म दिया. जब क्यूरोसिटी हुई तो दैट इंट्रीग्ड, और उसने क्या किया, एक सिक्स सेंस को ये एक्शन करने के लिए बोला दैट यू शुड ऑर्डर दैट. नाउ दैट इज कॉल्ड द पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस. और ट्रेडिशनल में हम लोग गेस वर्क करते थे. नाउ वी हैव रियल टाइम डेटा डिसीजन एज. सो आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट दैट आई गॉट टू लर्न. सो आई एम ऑल्सो डेटा साइंटिस्ट, whereby we are utilizing that data, we are utilizing that information to have some kind of predictive analysis. आज मौसम विभाग कितना सटीक है कि 24 घंटे पहले हमें पता लग जाता है कि how will be the weather of that. Now that is called the real time data. और ultimately हमारा needful ये है कि AI को यूज करके हम अपने डिसीजन की क्षमता को बेहतर बनाएं. यही हमारा टारगेट होना चाहिए. ऑल्सो इन इंडिया विच इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री, हर 20 किलोमीटर में हमारी भाषा और मौसम दोनों बदल जाता है. तो इन दिस केस वन साइज फिट्स ऑल कैन नेवर बी द कॉन्सेप्ट. तो हमको क्या करना है, जितना भी हमारा टारगेट ऑडियंस है उसको माइक्रो टारगेटेड कंटेंट के हिसाब से हमें कैप्चर करना. एंड इसीलिए we have considered the shift from intuitive to the intelligent one. So I hope that is clear to everyone. Now I have some facts and figures to support this. The global impact of AI in marketing. तो हमारे पास जितना भी, ये मैंने कुछ sources लिए हैं, McKinsey and various other sources, और also E&Y and some kind of Deloitte, उनसे मैंने कुछ आंकड़े लिए हैं. तो 80% of the digital ad spend now uses programmatic AI. तो पहले हम क्या करते थे, वीडियो बनाते थे और बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें यूज करते थे, बट नाउ वी हैव जितना भी एवरीथिंग इज फॉस्टर्ड programmatically. Now what is programmatic? Programmatic is something which has the program also and which has called automatic also. तो ऑटोमेटेड हमने प्रोग्राम बनाया और हमने फेच कराया, तो हमें ये पता चला कि 80% ऑफ द डिजिटल एड स्पेंड इसमें इस्तेमाल होता है. तो वो चीज से हमारा क्या हुआ, समय बचा. हमारी ROI या ROAS हमने काफी इफेक्टिवली यूज किया. थर्ड, रिटेंशन काफी अच्छा रहा. और सबसे बड़ा चीज जो हमें सबसे बड़ी चीज जो अचीव हुई है, दैट इज कॉल्ड द रिटेंशन. एक रिमेम्बरेंस होता है, एक साइकोलॉजी का एस्पेक्ट होता है विच इज कॉल्ड द इजी फॉरगेटफुलनेस. तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा ब्रांड है, हमारा कैंपेन है, वो इतना सटीक हो that we have a long lasting impression of the brand. So that is why we have the personalized campaigns, deliver 8x ROI. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंटेंट में, प्रोडक्शन में स्पीड जो इजाफा हुआ है, दैट इज 50%. और इंडिया के लिए हमारा जो AI है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रोथ मल्टीप्लायर. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. AI plus India is a growth multiplier, and then we have to look at the further things. तो सबसे सरल भाषा में मैं मार्केटिंग को डिफाइन करूंगा कि यहाँ पे हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं. we engage with people. Storytelling is a great part. Then we have personalization, and last of all, how to deliver the content that sticks. Now this is the definition in which we are utilizing each and everything. तो इकोसिस्टम हमें क्रिएट करना है, और वो सारी चीजें, एटमॉस्फेयर, everything that we can create via these elements.
Now we have the 5-pillar AI marketing framework. सबसे पहला we have audience intelligence. Second, we have content generation. Third, we have campaign automation, predictive analysis, and conversational engagement. So I have a question out here कि जितने भी आप OTT platforms हैं, तो OTT platforms पे आप सब बने हुए हैं. The question, how many of you are a regular visitor of the OTT platforms? Anybody? कौन सा OTT platform आप यूज करते हैं और किस समय करते होंगे लगभग? Yes, I want to have some answers. Okay, Netflix. Okay, Udit says okay. What else? और कुछ? Okay, Mr. Udit, I have a question for you. कि Netflix आप यूज करते हैं, तो Netflix में कभी AI का इस्तेमाल देखा आपने? Application of AI in Netflix. Anybody? Okay, Pranjal says Prime. Okay, that's good. Yes, have you seen AI in Netflix? Okay, tell me how. How is that possible in Netflix? तो मैं वो चीज डिस्कस कर रहा हूं which is easily understandable and easily have a perception. Okay, I'll tell you something. They recommend similar shows. Okay, on what basis? Do you have the idea, Pranjal? ओके अगर हम ये चीज देखें कि उबर एप्लीकेशन या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें किस प्रकार से हमें रिकमेंड कर रहा है, उसके पीछे का बेसिस क्या है, एल्गोरिथम क्या है, तो हमारा जीवन आसान हो जाए. और सबसे बड़ी चीज, इफ वी अंडरस्टैंड दैट वेल, तो प्रोग्रामेटिक जो एआई हम पढ़ रहे थे वो हमें आसान लगने लगे ऑन प्रीवियस हिस्ट्री. Okay, I'll tell you something very important. While you are using the Netflix and the internet is working, have you seen many a times that you are having a chit chat with your friends and you're talking about some kind of entertainment, or you are planning some kind of trip to Connaught Place or any other, और जैसे ही आप बात करते हैं उसके बात करने के तुरंत बाद नेटफ्लिक्स आपको उसी कन्वर्सेशन के ऊपर रिकमेंड करता है. Have you seen many things that you're talking about the coffee, you're talking about the tea, you're talking about any snack or anything, immediately you see that Netflix has recommended you that particular thing. Have you seen such a thing to happen? और वो क्या चीज है ना, वो चीज ये है कि जब भी आप बात कर रहे हैं, है तो वो टेलीफोन डिवाइस, you are using an Android device or any other. Now in that case, everything, चाहे वो Google के साथ आप शेयर कर रहे हैं, चाहे वो Apple के साथ, they have got the cookies, they have got the system. वो जानता है कि आप कौन सी एज ग्रुप में हैं, आपके लाइक्स प्रेफरेंसेस क्या हैं. Now basis that it is recommending you all the things. और दूसरा, जब आप नेटफ्लिक्स या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो डेलिबरेटली आता है कि वुड लाइक टू शेयर द कॉन्टैक्ट, वुड लाइक टू शेयर द माइक्रोफोन, वुड लाइक टू शेयर द वीडियो, यस और नो. तो बेसिस दैट दे आर हियरिंग एवरीथिंग. सो वो सारी चीज, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, दे नो यू मोर देन योरसेल्फ. सो इफ दे आर नोइंग यू मोर देन योरसेल्फ, क्यों ना आप उनसे भी पैसा कमाएं. यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम वॉचिंग द रील्स, एंड देखा जाए तो अचीव क्या होता है? एनीबडी? what you achieve after spending about 4 to 5 hours in a day? देखा जाए तो you are only achieving nothing. एक भाववाचक संज्ञा है जिसे कहते हैं आनंद. आनंद की अनुभूति हो रही है कि आप 6 घंटा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रादर देखा जाए तो 1/4 of day is utilized or wasted.
But I have got a phenomena, I have got some techniques whereby every minute you spend on these platforms, you can learn, you can create your own self. एंड वो चीज मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीजें आपको बताई जाएं. समय अगर ज्यादा होता तो मैं डिस्कस करता, बट एज ऑफ नाउ हम एआई पर्टेनिंग वो चीज मैं आपको बताऊंगा विच यू ऑलरेडी नो इट, बट यू हैव टू डिस्कवर इट. सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन वंस अगेन. 1 minute, please. Yes, everyone. So 5 pillar AI marketing framework हम डिस्कस करेंगे और सीक्वेंस इस तरीके से होता है. So एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है everyone, that we have to think globally, but we have to narrate everything locally. एक मंत्रा है, this is my mantra which I have been following this, कि हमें थॉट प्रोसेस ग्लोबल होना चाहिए, लेकिन हमारी अप्रोच होनी चाहिए लोकल. हमें स्टोरी जो बतानी है लोकल में. वाई? बिकॉज जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, जहां से हमें बिजनेस मिलना है और जो हमारे प्रोस्पेक्ट बायर्स हैं, उन पे ये फॉर्मूला फिट हो. सो आई कॉल डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूं. आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एंड देन आई लर्न मैनेजमेंट फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस. तो मैं डिजिटल मार्केटिंग को दो चीजें मानता हूं, शास्त्र और अस्त्र. दोनों जरूरत होते हैं जंग के लिए. तो मैं क्या करता हूं, डिजिटल मार्केटिंग को आर्ट और साइंस दोनों ही मान के चलता हूं. नाउ आर्ट से संबंध क्या है? व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज समथिंग कि जो भी हम चीज परसीव करते हैं, जो भी हम चीज, हमारा थॉट प्रोसेस है, उसको मैं आर्ट से जोड़ता हूं. नाउ दैट कैन बी my creativity, that can be artistry, that can be theater, that can be drama, or any other form of art. It can be the contemporary, it can be singing, it can be writing. तो वो पर्टिकुलर चीज जो कला है, कलात्मक, उसको मैं आर्ट कहूं. नाउ 70% of the consumers, they feel that they are connected with the brands. क्यों? क्योंकि ह्यूमन सेंटर्ड स्टोरीज हैं. इसका आर्ट का एग्जांपल देते हुए I would like to tell you one famous brand which is called the Dove soap. Right? I hope you are aware of the Dove soap. Everybody? Dove sabun? जानते हैं सभी? Yes, please tell me if everybody is aware of Dove soap. Now, I want to discuss about this case study. कि what is something special about the Dove soap? कोई बता सकता है? I'm not talking about the kind of usage, but branding की यहाँ पे अगर बात करें तो Dove soap में ऐसे क्या important चीज है? About an experiment, scientific testing and all, which is done on some Okay. kind of authentic lab. हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात है. नाइस. लैब में तो ये चेक हो गया उसका कंपोजिशन क्या है, और जो पब्लिक को स्प्रेड होता है मैसेजेस, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एडवर्टाइज की बात कर रहे हैं. जी, डायरेक्ट कंपैरिजन करने पे क्लिक करता है. डायरेक्ट कंपैरिजन. ओके, और कुछ? एनीथिंग एल्स? ओके, आई टेल यू समथिंग जो आप सब जानते हैं, लेकिन वो चीज उभर के आएगी कि जब हम पर्सनलाइजेशन की बात करते हैं, एब्सोल्युटली, जब हम पर्सनलाइजेशन की बात करते हैं, तो डव सोप ने आज तक किसी भी ब्रांड को, एम्बेसडर को एंडोर्स नहीं. ब्रांड एम्बेसडर उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, रादर दे गो टू द जनरल ऑडियंस एंड कैप्चर देयर टेस्टिमोनियल्स. राइट? तो पर्सनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उनको ये चीज मालूम है, विच इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, कि अगर कोई भी ब्रांड एंडोर्स करता है, एम्बेसडर होता है, तो हम ये सोचते हैं कि क्वालिटी जेन्युइन नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मनी हैज बीन टेकन बाय द ब्रांड एम्बेसडर. बट व्हेन द ब्रांड गोज टू द जनरल ऑडियंस एंड गेट्स देयर टेस्टिमोनियल्स डन, दैट मीन्स इट इज ऑथेंटिक. हमें भी एक साइकोलॉजिकली होता है कि अगर उसने एंडोर्स किया है तो सही होगा. नाउ दैट इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डिस्कस, कि वो पर्सनलाइजेशन हम लोग यूज करते हैं, एंड दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ आर्ट.
Now coming to the second point, that is we have got the science aspect. Now science का मतलब है लॉजिक, तर्क. तो आर्ट का मतलब है कि हम आर्टिस्टिक वे से करेंगे और लॉजिक हमें देता है साइंस. तो यहाँ पे एक हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने ब्रांड को इमेजिन करते हैं कि हमारा ब्रांड इस तरीके से होना चाहिए, हमारा कैंपेन ऐसा होना चाहिए. और वी एज अ एजेंसी और कोई भी पर्सन एज अ मार्केटर उसको कैसे परसीव करेगा कि हमारा काम है कि टू ब्रिंग देयर ड्रीम्स टू द रियलिटी. ये बात सही है, हमने उनको उनके सपनों को साकार करना है और वी हैव टू ब्रिंग देम टू द रियलिटी. एंड दैट इज व्हाई वो जो उन्होंने परसीव किया, जो उन्होंने ड्रीम किया, वो हुआ आर्ट. और जब हम प्रैक्टिकल में लेके आए हैं तर्क के माध्यम से और जो भी हमने यूज किया है, दैट इज कॉल्ड द साइंस. सो दैट इज व्हाई इट इज अ डुओ. नाउ दूसरा एआई आर्टिफिशियल है, व्हिच द डेफिनेशन सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पर हम तो एंटरप्रेन्योर हैं. सो मेरी एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ये कहती है कि हर एक जो लेटर है, सो वी शुड हैव द एनर्जी, वी शुड हैव द नोवेल्टी, टेनेसिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एम्पैथी, पैशन एंड सो ऑन. तो अब होता ही है कि एआई के पास 2-3 चीजें हैं वो मिसिंग है. एक सेंटिमेंटल एनालिसिस, दूसरा उसके पास रेजिलियंस नहीं है, और तीसरा उसके पास रिसोर्सफुलनेस तो है, लेकिन कौन सा रिसोर्स कब परसीव करना है, दैट हैज नो आइडिया. तो आज भी एआई कंफ्यूज होता है, तो वो कंफ्यूजन के लिए हमें कमांड देनी पड़ती. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस टुडे, कि आज हमारे पास एआई को यूज करने के ट्रेंड्स क्या हैं. जो भी हम ट्रेंड्स और टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, ट्रेंड्स इज ऑल अबाउट द हाइपर पर्सनलाइजेशन. AI customizes the content, offers and experiences in the lifetime. AI generated content, predictive analysis, voice and visual search. तो इसका लाइव एग्जांपल की अगर बात करें तो आर यू अवेयर ऑफ द एक्चुरियल साइंसेस? एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट आर एक्चुरियल साइंसेस और उसका इस्तेमाल कैसे होता है? यस, एनीबॉडी? I want more answers from the participants who are over here and they are listening effectively. What are actuarial sciences? What is the actuarial science? Yes, anybody? So we have got 46 participants and it is hopeful that you answer everyone. और ये जो सेशन है ये जनहित में जारी है, तो इसलिए कोशिश करें कि मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें जिसका. Sir, can you repeat your question, please? So what are actuarial sciences? Actuarial sciences क्या होता है? So सर के चेहरे पे मुस्कान है, जानते हैं actuarial sciences क्या हैं. तो मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से जो अभी ग्रेजुएशन में हैं और पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ रहे हैं या पीएचडी परस्यू कर रहे हैं. एक्चुअल साइंसेस का मतलब क्या है और एआई को हम डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं एक्चुअल साइंस? यस प्लीज. Nobody is answering. Very surprising. Actuarial science, I guess, means like using mathematical problems for the AI, like in use of AI, I guess. ओके जी, नाइस. ओके आंसर, गुड आंसर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें करेक्शन की जरूरत है. मैथ्स का तो यूज करते हैं और एक अच्छे मार्केटर को मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. सर यहाँ पे मेथड का भी यूज करते हैं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. स्टैटिस्टिक्स इज ऑफनली यूज मोर देन द मैथमेटिक्स. और उसके अलावा एनीथिंग एल्स? ऑब्जर्वेशन भी हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. राइट, एब्सोल्युटली, ग्रेट. टू प्रिवेंट रिस्क. ओके, परफेक्ट. तो एक्चुरियल साइंसेस एक साइंस का विभाग है जहां पे हम चीजों का शोध करते हैं
और शोध करने के बाद हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं उन सारी चीजों के लिए जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, या हम किसी भी चीज का शोध करते हैं। इसका लाइव एग्जांपल, हम नहीं जानते कि जैसे कोविड आया, कोरोना, वो कोविड एक अनएक्सपेक्टेड वो था, राइट। अब उसके लिए एक्चुअल साइंसेस के पास आंसर नहीं था, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सीस्मोग्राफ्स, राइट, और ऐसी आपदा जो आती हैं उसको स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है उसको हम एक्चुअल साइंस बोलते हैं। तो LIC एक सबसे बड़ा ब्रांड है जो एक्चुअल साइंसेस को यूज करता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी, राइट। तो आपको क्या करता है कि AI ऐसा एक पर्टिकुलर कॉमन या टूल है जिसका यूज हमारे को केवल आंसर देने में नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी वो आंसरिंग मशीन्स हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, राइट। So in that case, I was fortunate that one of the universities in America conferred upon me doctorate, PhD, honorary doctorate. तो वहां से मुझे ये जानकारी मिली कि एक्चुअल साइंसेस का यूज बहुत ज्यादा है। तो अगर हमारे पास थीसिस हैं, उसको हम कैसे प्रेडिक्ट कर पाएं, AI को सिमुलेशन कैसे कर पाएं। एक विभाग होता है मैथ्स का, विच इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन, जहां पे हम मैटलैब एनालिसिस करते हैं, तो वो पूरा एनालाइज करके हम आंसर करते हैं। तो उस चीज में हमें AI को डिप्लॉय इन अ मोस्ट इफेक्टिव मैनर। So I see some PhD course work. Absolutely, yes, absolutely, Abhimanyu, you are right. So I guess a marketer has to be a great personality, all-rounder होना पड़ता है, right? It is not only about the mathematics; it is about every other field of study. तो वो चीज का इस्तेमाल आप बेहतर तब कर पाएंगे जब आप खुद बेहतर जानेंगे। Now coming to the next point that we have. Okay. So now we have the trends जो मैं आपको बता रहा था। हमें प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग विच इज अ ट्रेंड, इन्फ्लुएंसर AI, सेंटिमेंटल एनालिसिस। अब जो लोग लीगल विभाग में हैं, जो लॉ परस्यू कर रहे हैं या मीडिया इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए ये सेंटिमेंट एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Why? Because today everybody has got the reach, everybody has got the tools to create the reels or the videos. Now उसका सेंटिमेंट कैसे हर्ट हो रहा है, कैसे बिल्डअप हो रहा है, उसका प्रेडिक्टिव एनालिसिस करने के लिए हमें AI की नीड है। हमें ऐसे वर्चुअल AI इन्फ्लुएंसर्स चाहिए जो सिस्टम में तो बने रहे लेकिन वर्चुअल है। Now that is affecting the media and that is affecting every other department. We should also have the synthetic media also. Synthetic media means कि जो मैन मेड हैं, डिजिटल ह्यूमंस एंड अवतार्स फॉर इमर्सिव मार्केट। तो अगर आप मेरा स्क्रीन देखते हैं तो स्क्रीन पे आप UI भी देख पाएंगे, UX देख पाएंगे। तो I have utilized those very properly so that the visibility is more. आप अगर देख सकते हैं तो over the left we and the top right we have the logos, then we have everything clean and tidy. Now that is particular simulation techniques. So this is something, a best example of the synthetic media, that we have used the words and the symbols to convey the right meaning. Now we have some kind of tactics also, whereby we have dynamic content creation, AI chatbots, automated A/B testing. Now A/B testing का live example along with actuarial sciences is the Japan technique, Japanese model. Now जापान में इतने वोल्केनोज आते हैं, बट उनका डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही बेहतरीन है। तो वो चीज को हम प्रोक्योर करेंगे। और द बेस्ट एग्जांपल इज, दो ब्रांड का मैं एग्जांपल लूंगा, वन इज द हीरो एंड अदर इज द होंडा। तो हीरो इज इंडिया मेड एंड होंडा इज जापानीज मर्जर। नाउ होंडा में अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, आई डोंट नो द पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे जनरिक मैं लूंगा कि होंडा में अगर आप देखें तो प्रॉब्लम्स कम आती हैं,
प्रॉब्लम्स कम आती हैं. Why? Because Japanese, they test not only about the A/B testing, but they test about the gamma testing. Then furthermore, gamma testing के अलावा वो augmented reality ads भी करते हैं और टेस्टिंग भी करते हैं. तो सिमुलेशन होता है जो हम गेमिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. आज जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, एनवीडिया एंड सो अदर्स, दे आर यूजिंग द ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसमें इंटरेक्टिव भी है और एआई एनहांस भी है. तो उस चीज को अगर हम ह्यूमन सिमुलेशन भी करें, ड्राइवरलेस कार्स, इफ वी टॉक अबाउट लग्जरी व्हीकल में डेड एंड को ट्रिगर कर देना पहले से, ताकि एक्सीडेंट्स का जो भी संभावना है वो मिनिमाइज की जा सके, तो वो सारे हम यूज करते हैं, वो सारे हमारे टैक्टिक्स. फिर हमें चाहिए सोशल लिसनिंग के लिए टैक्टिक्स, एआई चाहिए. कहीं भी हमारे ब्रांड का मेंशन हो, हमें तुरंत पता लग जाएगा. तो वो कैसे पॉसिबल है? इट इज नॉट अबाउट द ह्यूमन एफर्ट, इट इज अबाउट द एआई. हमने क्या किया? हमने एक फॉस्टर कर दिया कि ब्रांड मेंशन कहीं भी मेंशन हो, हमारे ट्रेंड से स्ट्रेटेजिक मूव हो, चाहे हमने क्वार्टर टू क्वार्टर हमें ये भी प्रोडक्टिविटी मेजर करनी है, तो हम उससे सोशल लिसनिंग कर सकते हैं. नाउ आई हैव गॉट सम ऑफ द टॉप एआई टूल्स which are free of cost for most of the people who are situated here. तो ये ChatGPT, Notion AI, Grammarly, तो इंटरनेट पे बहुत सारा ज्ञान है. अब कौन सा ज्ञान हमें लेना है, कौन सा नहीं लेना, ये कैसे बता सकते हैं? कैन यू टेल एवरीवन कि इतना ज्ञान में से कौन सा ज्ञान, कौन सा टूल हम इस्तेमाल करें? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, प्लीज कैन यू टेल? So let us have a brainstorming right now. I stopped the sharing for a while and I know the answer to my question कि इतने सारे टूल्स हैं, हमें कौन सा टूल का इस्तेमाल सही करना चाहिए, और या इन अदर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कौन सा टूल बेस्ट है. I want everyone to answer, including संजीव सर, if you like so. तो कौन सा टूल हम इस्तेमाल करें, बताइए. हाँ जी, बता सकते हैं. सर ये आपकी जो नीड्स है ना उस पर डिपेंड करेगा. आपको वीडियो बनाना है तो कौन सा ये टूल काम करेगा, टेक्स्ट तैयार करना है तो कौन सा काम जी. करेगा, है ना. जी सर. ग्रामर के जी, बारे में आप करेक्शन है. तो मुझे लगता है कि जिसकी जिस तरह की नीड्स है, अब ये तो जी उनको सर. अपनी विवेक पर तय करना पड़ेगा कि किस तरह से क्या करना है ना. एब्सोल्युटली स्क्रिप्ट तैयार करेक्ट. करनी है तो उसके हिसाब से होगा. तो जितनी मेरी समझ है. यस सर, राइट. जी. यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि सबसे पहले टूल इस्तेमाल करने से पहले हमें ये पता करना है हम कौन, हु आर वी. So before we go for any other tool, we have to first identify what is our profession. हमारा काम क्या है, हमारा टूल कौन सा होना चाहिए, और हमें अपने काम को करने के लिए आसानी कैसे होगी. तो इसके लिए I have got some glossary. So the first is that you should know yourself. If you are a student, if you are a professional, if you are a graphic designer, if you are a PhD scholar, in that case हर एक का टूल अलग. Why? क्योंकि हर एक की सिचुएशन और हर एक की परिस्थितियां अलग हैं. तो that is the best answer which I want to tell you more about it, कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा टूल बेस्ट है. अब अगर देखा जाए तो 1 मिनट प्लीज. अगर देखा जाए तो हमारे पास ChatGPT जैसे बहुत सारे टूल्स हैं. वी हैव द परप्लेक्सिटी, वी हैव गूगल जेमिनाई, राइट, वी हैव ल्यूमन, वी हैव वेरियस अदर थिंग्स एज वेल. नाउ अगर हम ध्यान से देखें परप्लेक्सिटी, नाउ परप्लेक्सिटी का मतलब ही कहता है वो परप्लेक्स्ड. परप्लेक्स्ड का मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, राइट. ChatGPT is about chat, right? Gemini is all about a different technique जो गूगल का टूल है. Now हर एक टूल का एल्गोरिथम अलग है और हर एक टूल का ऑब्जेक्टिव अलग. तो परप्लेक्सिटी इज बेस्ट यूज्ड बाय द प्रोफेशनल्स जब हमें कोई भी डीप थिंकिंग करनी है,
जैसे मान लीजिए पीएचडी स्कॉलर्स के लिए अगर हमें रिसर्च पेपर्स का कोई पर्टिकुलर हमें चीज निकालनी है कि प्रेसिपिटेशन कितना हुआ सन 2020 में उस पर्टिकुलर सिटी में, ताकि हम अपने रिसर्च को और रिफाइन कर पाए. नाउ इन दैट केस ChatGPT won't be able to give the best answer, right? तो जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे सर्च इंजन से तो डेटा ले रहे हैं, लेकिन कौन सा डेटा किसके इसलिए सटीक है, उसकी ऑथेंटिक है या नहीं है, ये चीज जानने के लिए टूल डिफर हो. तो ये फ्री एआई टूल्स हैं जो मैंने आपके सामने बताया. नाउ वी हैव सम पेड एज वेल. Another thing that we have is Microsoft Copilot. Now what is Copilot? Copilot is a person जो कि पायलट तो है लेकिन सहायक है, राइट? Copilot. तो इसी तरीके से Microsoft ने Copilot टूल का इस्तेमाल किया, नाम रखा कि वो पायलट तो है लेकिन Copilot है. तो इसी चीज से हमें भी समझना चाहिए कि एआई का इस्तेमाल करते समय हम पायलट मोड पे हम रहें, वो ना रहे, तो वो सहायक है बेसिकली, राइट? तो एक टूल है विच इज कॉल्ड अदर वन विच इज यहाँ पे लिस्ट है आपके सामने, विच इज क्लॉड फॉर द प्रोफेशनल्स. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉड? एनीबॉडी? CLAUTE. इसका मीनिंग बता सकते हैं? व्हाट इज क्लॉड? Yes, please. Anybody who can tell me क्लॉड का मतलब क्या है? हाँ जी, किसे जानने की कोशिश करी? अच्छा, ये वर्ड इंग्लिश का है या कौन सी भाषा का है, ये बता दीजिए. नो. सो बेसिकली क्लॉड का मतलब है, क्लॉड इज अ वर्ड विच इज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज. और क्लॉड का मतलब है द पर्सन हु इज लेम, द पर्सन who has some kind of problem. There is some problem with the video, I guess. Yeah. So, Claude means somebody who is lame. तो जिनको खुद सहारा चाहिए, तो that means AI is telling us that we need information. We need more intelligence to be more intelligent. और उसकी निर्भरता हमारे पे ज्यादा है. तो so that is what I want to press on this topic, that whatever information that we have, Google Gemini खुद disclaimer हमें देता है कि Google Gemini can be incorrect. Double check once for the genuineness. Then we have other these tools. So हमें question है, should we rely completely? The answer is that what exactly do we need? हमें क्या चाहिए? हमें केवल 4 चीजें चाहिए. We need to do something better. We need something which is easy to manage. We have to be wider and have the broad vision as well. And we have to be reliable, robust and rational. तो अगर ये 4 चीजें हमारी AI टूल accomplish करता है, तो I think हमारा ये टूल ओके है. लेकिन हमें completely rely नहीं कर, हमें अपनी IQ, common sense and the best is self-confidence. We should have that. And why you should use AI tools? We have the speed and efficiency. दूसरा हमारा data insights, creativity boost and the consistency altogether. तो why you should not rely completely? इसका limitation है, human content को lack करता है, और कई बार हमारे जितने भी टूल्स हैं वो बायस डिसीजन करते हैं. आप कभी आजमा लीजिएगा, you are talking about a subject and immediately you take the U-turn and ask them the reverse question. वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपको बायस्ड आंसर देगा, राइट? उसके बाद हमारे पास लीगल और एथिकल रिस्क भी इन्वॉल्व होता है. प्लेजरिज्म हो सकता है कंटेंट में. देयर कैन बी ए प्रॉब्लम अगर हम कोड लेना चाहें किसी प्लेटफॉर्म से,
अब वो कोडिंग कैसे हमें इस्तेमाल करेगा, उसमें कोई पर्टिकुलर कोड उसने डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया, विच इज अ वायरस. नाउ इन दैट केस दे कैन कैप्चर द डेटा. तो कोई भी हम कोड का इस्तेमाल करें, उसको जांचे बगैर नहीं करना है. If you're not a coder, I understand, ask some of the coder to validate that particular code. Before you design application, उसका फ्रंट एंड आप इस्तेमाल, फ्रंट एंड बाद में करें. बैक एंड का जो कोड है उसको आप इस्तेमाल करने से पहले जांच करें कि उसमें सही चीज है, कुकी या एनी प्राइवेसी ब्रीच तो नहीं है. तो वो चीज देखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आई हैव कंसिडर्ड द एंटायर डेकोरम, the entire protocol or the prodigy in the 4 main operations. Number 1, we have the in-depth analysis. Then we have the vision, goals, and the strategy. Then we have tactics and operations. And finally, we have documents and presentation. And after this is a takeaway, this is a disclaimer, and this is a suggestion also, which is a recommendation. That use AI as a co-pilot, not as autopilot. So we have to augment your judgment and we do not have to replace it. However, second, it can be always review, edit, and personalize the AI outputs. Use AI to handle how and why. Focus on strategy, not the tools, because intelligence is procured by you and AI is artificial intelligence only. And last of all, as already said by Usha ma'am, keep human sympathy in every AI campaign. So, ये सारी चीजें हैं. So, if you have any queries or concern, you can raise as of now. And last of all, this is how you can stay connected with me. I always will be glad to help to discuss many things. And that is all from my side. If you have any questions or queries, you are most welcome to ask or discuss. चलिए कपिल जी, बहुत बहुत आभार आपका. आपने AI ड्रिवन मार्केटिंग के बहुत सारे एरियाज हमारे सामने भली भांति स्पष्ट किए. विशेषकर AI टूल्स किस तरह से हमारे लिए मददगार हो सकते हैं, क्या सावधानियां, सतर्कता हमको बरतनी है. बहुत सारे पक्ष आपने हमारे सामने डिस्कस किए. बहुत बहुत आभार आपका. इसके पूर्व की इस सत्र को क्वेश्चन आंसर के लिए अपन शुरू करें. मैं एक बार भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में सहायक प्रोफेसर पुष्पेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज की शाम की को यादगार बनाने के लिए, स्मरणीय बनाने के लिए, जैसा कि हमारी परंपरा है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको हम ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करते हैं. तो पुष्पेंद्र जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो आपको भी भेंट करें. पुष्पेंद्र जी. Thank you so much for this. I'm glad. Yeah. Thank you, sir. Thanks for this honor and respect that will be cherished throughout. मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा सभी के लिए सर. जी सर. कोशिश करिए कि हिंदी भाषी रहे हैं और काफी चीज सीखी है. तो 4 पंक्तियां हैं सभी के लिए जो मुझे ऊर्जा देती हैं आगे और प्रयत्न करने के लिए. तो पंक्तियां इस प्रकार हैं. समंदर की कहाँ हार होती है अगर कागज की कश्ती पार होती है. समंदर की कहाँ हार होती है अगर कागज की कश्ती पार होती है. कश्ती अगर पार होती है तो, हाँ सॉरी मैं थोड़ा रह रहा हूं, 1 मिनट. समुंदर की कहाँ हार होती है, कागज की कश्ती अगर पार होती है. यही रेजिलियंस है. अगर पार हुई तो हमारी मंजिल, नहीं तो सागर के विस्तार की अनुभूति. वाह. लेखक अगर है कपिल तो क्या, लेखक अगर है कपिल तो क्या, लेखन की प्रेरणा उसी अनुभव से प्राप्त. थैंक यू सो मच. चलिए सब बहुत बढ़िया. तो आपका ये अनुभव इसी प्रकार से समृद्ध होता रहे. और अब ये सत्र चर्चा के लिए खुला है. जो भी हमारे मित्र कोई टिप्पणी करना चाहें, कोई प्रश्न उनके मन में है, तो आपसे रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें
और अपनी टिप्पणी या सवाल पूछें। Absolutely, please. जी। Good afternoon, sir. My name is Radhika and I wanted to ask कि like usually लोग कहते राधिका, हैं प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून सर, आई एम राधिका। मैं फर्स्ट ईयर में अभी मैंने एडमिशन लिया है BJMC कोर्स एंड आई वांटेड टू आस्क अबाउट AI कि आपने जैसे बोला कि AI हमारी लाइक बहुत डेली बेसिस में हेल्प करती है, लिटरली हर चीज़ में करती है, बट आप अगर हम बड़े बड़े लाइक बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोगों की आप सुनते हैं तो दे ऑलवेज से अ वर्ड कि AI इन फ्यूचर कैन कंट्रोल अस, दे इट कैन डिस्ट्रॉय अस। तो लाइक हम ऐसा कैसे व्यू करें या हम ऐसे कैसे वर्क करें कि हम उसको यूज कर सके, वो हमें डिस्ट्रॉय ना कर सके, और लाइक उस लाइन का मतलब क्या है AI कैन डिस्ट्रॉय अस का, किस वे में वो हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है? हाँ जी, राइट। तो वो तो कॉन्टेक्स्ट तो मैं नहीं जानता कि उसका कॉन्टेक्स्ट, कन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या रहा होगा, लेकिन कोशिश मैं करूंगा इन्फ्रेंस लेने की। तो AI की मदद से आज हम कोई भी कोडिंग के जरिए आई कैन क्रैक एनी कोड। अगर हम AI को ये भी कहें कि कोई भी जो एंटी पब्लिक कोई चीज है उसको आप डिफाइन कर दीजिए, तो वो मेरे लिए पूरा प्रोसीजर लिख देगा कि एंटी पब्लिक के लिए मुझे क्या करना चाहिए जो मेरी कैपेसिटी के अंदर है। तो अगर वो चीज मुझे डिप्लॉयमेंट का तरीका वो बता देगा तो मेरे लिए वो एक ऐसा हो जाएगा जिससे मैं सारी चीजों को हार्म कर सकता। तो आई थिंक दैट कैन बी वन ऑफ द आंसर्स। सेकंड कैन बी कि AI से हमारी कैपेसिटी, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा जो विस्तार है, होराइजन है, वो ज्यादा ब्रॉड हो चुका है। तो जिसकी वजह से मानसिक तनाव और ये सारी चीजें जो हैं वो दे आर राइट इन प्लेस। तो दैट इज वाई आपको ऐसा लगा कि वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेकंड कैन बी, अगर AI की बात करें, अब हम अपने कंट्रोल में उसको कैसे रखें। सो द बेस्ट आंसर इज कि हम अपने में विश्वास रखें। सेकंड, AI को यूज करने के लिए हम वही चीज का इस्तेमाल करें जो कि टेक्निकली करेक्ट है, एथिकली करेक्ट है। तो अगर हम एथिकली सही जा रहे हैं, हमारे एज ग्रुप के अनुसार ही हम सारी चीजों का इस्तेमाल सही करें, सेल्फ कंट्रोल वी हैव, आई थिंक दिस इज द बेस्ट आंसर विच कैन कंट्रोल द मेथड, एंड नॉट ओनली द मेथड बल्कि द एंटायर एटमॉस्फेयर एंड द इकोसिस्टम। सर, Right. मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो डिस्ट्रॉय करने की बात कही, मुझे लगता है उसके बहुत सारे पक्ष हैं। जैसा जी सर। आपने कहा एंटी पब्लिक, अभी कुछ समय पूर्व, कुछ महीने पहले अमेरिका में एक बच्चे को उनके पेरेंट्स ने टोका, मोबाइल और इन सब डिजिटल मीडिया के ज्यादा यूज नहीं करने के लिए। उस बच्चे ने AI से पूछा कि मेरे माता पिता मुझे टोक रहे हैं, मैं क्या करूं। उस AI टूल ने कहा कि तुम माता पिता की हत्या कर दो। अब आप देखिए कि ये, अब यदि वो ये पूछे कि मैं कैसे हत्या करूं, शायद वो भी बता देता। तो उन पेरेंट्स ने उस AI के खिलाफ कोर्ट में केस भी दायर किया है। अब ये AI तो नहीं कर रहा है, ये अल्टीमेटली हम ही कर रहे हैं, जो उसकी प्रोग्रामिंग है। मुझे लगता है आप AI के एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है या जो बातचीत की है कि वो जो प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हुई है, उस कारण वो इस तरह के, जब गोर का आया जैसे, वो आप एक गाली दोगे वो 10 गाली देगा आपको। लेकिन चैट GPT से आप पूछेंगे तो वो चुप हो जाएगा और वो माफी मांग लेगा, उसकी अपनी एक सीमा है। तो जो डिस्ट्रॉय करने वाली बात है, मैंने भी आपको कहा, मैं नाम स्लिप हो रहा है, आज ही अखबार में पढ़ा मैंने कि जिसको नोबेल प्राइज मिला है और उनको आप फादर ऑफ AI भी कहते हैं, वो जब ये कह रहे हैं कि मनुष्यता के लिए खतरा होगा। अब ये बच्चे, जैसे फर्स्ट ईयर की बच्ची है राधिका, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, अब इनको होम असाइनमेंट दिया, पुष्पेंद्र जी हमारे सामने बैठे हैं, और मालूम पड़ा कि उन्होंने AI से इशारा करके लिया है। तो आप अपनी इमेजिनेशन को किल कर रहे हैं। आज दुनिया के 50 से ज्यादा कंट्रीज मोबाइल फोन को कॉलेज और स्कूल में लाने को बैन कर चुके हैं, इसीलिए कि उनकी इमेजिनेशन और वो किसी तरह से बची रहे। तो वो जो डिस्ट्रॉय होने का, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे पक्ष हैं, मुझे तो ये डर है कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि मशीन और मनुष्य एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू कर दें। AI के आज रोबोट की आत्महत्या करने की खबरें आ रही है, तो आत्महत्या ये नहीं है, मुझे फिर वो लगता है कि वो उनकी प्रोग्रामिंग की बात है।
कोई ऐसा मस्तिष्क आ गया, ऐसा ह्यूमन ब्रेन आ गया जो इस तरह की प्रोग्रामिंग कर दे, तो वो तो आपको पता नहीं किस सीमा तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मुझे लगता है जी इसको जी सर। व्यापक परिदृश्य में लेना चाहिए हाँ और जी सर। एआई का सतर्कता, सर, सावधानी के साथ, और जो हम बार-बार कहते हैं कि तकनीक हमारी मास्टर नहीं बने, तकनीक जी हमारी गुलाम रहे। यदि वो आप पर हावी हो गई, तो फिर परेशानियां निश्चित रूप से आने वाली। सर मैंने अगर देखें तो जितना भी मानसिक जो हमारी तरंगे हैं जी, और न्यूरॉन्स नर्व्स हैं, वो न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस्ड हैं जी, कि जितना भी न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज देते हैं। अब हुआ क्या है सर, एआई और स्मार्टफोन की वजह से जो जो हार्मोन सिक्रीशन है, जैसे एड्रेलिन एक हार्मोन है जो कि एक्साइटमेंट और वो बढ़ाने में सहायक रहता है, तो मोबाइल और एआई की मदद से एड्रेलिन का रश हो चुका। अब वो जब एड्रेलिन रश हो चुका है तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, बहुत जल्दी मैसेज पहुंचाते हैं। तब जल्दी जल्दी मैसेज, वो भी एक सर ओवर ग्रोथ है, ओवर यूज है। बिल्कुल, अब अगर मान जो ब्रेन जितना सोचने का परसेप्शन नहीं है, एंड दैट इज व्हाट, आज स्मार्टफोन बच्चे के हाथ में अगर 1.5-2 साल का होता है तो आ जाता है, तो वो अब उम्र से ज्यादा मैच्योर हो गया इन टर्म्स ऑफ दैट। तो वो चीज एक डिजास्टर ही है। तो बिल्कुल। जिन्होंने भी बोला, तो वो सारी चीजें अगर हम खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखें, हम अपने बचपने को वापस लेके आए, जब हम चंपक पढ़ा करते थे, रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ते थे, सुडोकू खेलते थे न्यूज़पेपर में, लेकिन आज जितने जितने भी हैं सबके गेम्स अवेलेबल हैं, इवन चेस का गेम अवेलेबल है, और चेस बोर्ड तो हम भूल ही गए। सो वी हैव टू गेट ऑन टू द बेसिक्स, क्योंकि जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है वो तो सर चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो मॉडिफाई हो जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम। सर तो उसी वो चेस को अब एआई के साथ खेला जा रहा है। आपको ध्यान होगा वो जी कॉस्पोरेव, एआई ने पहली बार हराया, उस रोबोट ने पहली बार हराया उसे। जी एक समय था जी जब सर। मनुष्य रोबोट को हरा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते गए, और अब चेस मानव मस्तिष्क और उनका और और सबसे अहम बात ये है संघर्ष सर शुरू हो गया। कि जी, हम एआई को हम इंटेलिजेंट भी हम ही बना रहे हैं। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक नई जगह जाते हैं और गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, एपीआई का, जो कि मोबाइल में उपलब्ध है। तो आप अब जब डेड एंड पे पहुंचते हैं तो गूगल आपसे पूछता है, क्या मैंने जो आपको रास्ता बताया सही है? तो वो खुद को ही वो मॉडिफाई कर रहा है। तो जब बिल्कुल। आप जैसा कोई उसी रास्ते पे दोबारा जाएंगे तो उसको वो आंसर से हेल्प मिलेगी। तो ऐसे और बहुत सारे उसी नेगेटिव उसी एलिमेंट्स गूगल हैं। मैप ने अभी कुछ दिन पहले एक गाड़ी को रास्ता बताया, वो पुल टूटा हुआ था और पुल के नीचे गिर गए 4 जने और खत्म हो गए। यही वो गूगल मैप है जो अब पूछने में लेट कर दिया उसने, और वो चले जा रहे हैं उसके उस पे। तो वो जो खुद का विवेक है, मुझे लगता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर राइट। मुझे तो लगता है सूरज जी बाय कुछ पूछना चाहते हैं, उनका वीडियो ऑन हो गया है। जी हाँ हाँ जी, जी जी बताएं। ऑफ कोर्स प्लीज। सर, जी नमस्कार। मैं सूरज देव प्रसाद और वर्तमान समय में विद्या यूनिवर्सिटी में सहायक प्रवक्ता हूँ, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में। सर, जी 2-3 बातें इसके साथ मैं सबमिशन के लिए, ताकि और भी उसको समझ सकें, कि जी ये जो जैकब ब्रोनोवस्की जो मैथमेटिक्स के बहुत बड़े स्कॉलर रहे ब्रिटेन के, और उन्होंने अपने तमाम रिसर्च के बाद एक क्वेश्चन रेज किया था खुद से, कि आखिर हम लोग की जो यात्रा है वो यात्रा शिखर के तरफ जा रही है, तो शिखर के बाद क्या है? मैंने लास्ट टाइम भी उठाया था। इसके साथ एक दिक्कत और आ रही है सर, एआई को लेकर के, कि हम लोगों की जो प्रवृत्ति है ना, कि सब चीज फ्री में लेने वाली स्थिति होती है, कि कोई भी चीज फ्री में मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो जी एआई भी अभी जो फ्री कंटेंट सबको डिलीवर कर रहा है, सारी चीजें हमारी आदतों को बिगाड़ रहा है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारी सोचने की जो क्षमता है। पहले तकनीक ने क्या किया कि हमारे शारीरिक श्रम को खत्म किया, जो फिजिकल एक्सरसाइजेस थे, जो हमारा काम था, उसको टेक्नोलॉजी ने सबको बर्बाद किया। अब एआई हमारे बौद्धिक क्षमता को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर रहा है, जिसमें अब है कि हम लोग लगातार जो स्टूडेंट भी हैं और तमाम लोग हैं जो एआई से के हैबिचुअल हो जाएंगे, उसके बाद उसका पेड वर्जन आना शुरू होगा।
अब उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो अपनी मौलिक क्षमता थी लिखने की, सोचने की, समझने की, वो खत्म हो जाएगी और हम मजबूर होंगे कि हम एआई का सब्सक्रिप्शन लें और उसके थ्रू जो है फिर हम अपना काम चलाएं, फिर और भी हमारी स्थिति डंप होने वाली होगी। तो मुझे तो सर इस तरह से लगता है कि मैं इसको बड़ी सरल चीज से कहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सूरज सर, कि यस जब सर, मैं मार्केटिंग को डिफाइन कर रहा था तो मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि मार्केटिंग स्टार्ट विद नीड जनरेशन एंड एंड्स विद रिटेंशन। यस तो सर, जितने भी ये टूल्स हैं वो यही चीज कर रहे हैं कि नीड को जनरेट कर रहे हैं ताकि आप लंबे समय तक रिटेन रहे। तो एंट्री पॉसिबल है, एग्जिट नहीं है। तो हाँ, अगर ऐसा है, अगर एंट्री पॉसिबल एग्जिट नहीं है, तो हम सब जिंदगी की जंग लड़ लेंगे। उसके बाद जो राधिका जी हैं जो बीजेएमसी कर रही हैं, वही हाँ, आर्टिकल छापेंगी हमारा न्यूज़पेपर में, राइट? तो दैट इज व्हाट द थिंग इज। तो हम अगर कंट्रोल्ड मैनर में यूज करें, सर यस सर, हमने साइंस में पढ़ा था 5वीं छठी में कि हाँ, एक होता है हाइड्रोजन बॉम्ब, एक तो होता है एटम बॉम्ब, राइट? यस, तो एक कंट्रोल फिशन होता है, एक फ्यूजन होता है। तो हम उस हाँ, चीज का अगर कंट्रोल्ड मैनर में यूज करें न्यूक्लियर रिएक्टर में, आई थिंक हम्म, तभी हमारे विचार जितने होंगे वो मैनेज होंगे, मैनिपुलेट नहीं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट आंसर टू यस सर, हैव यस दैट सर, सर क्वेश्चन। मुझे तो लगता है कि ये बदलती जो तकनीक की दुनिया है, अपने को उसके साथ कदम ताल करना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आज से 20 साल पहले जब हमारी किताबें छपती थी, तो हम जिस कवर डिजाइनर के पास जाते थे, वो अपने दिमाग से सोच करके बहुत बढ़िया कवर बनाता था। अब जो मेरा जर्नल है कम्युनिकेशन टुडे, हर 3 महीने में मुझे कवर की जरूरत होती है, और वो जो कंपोजिटर है वो इंटरनेट से ही वो सारे चित्र निकाल निकाल करके, और उसमें कोई वेराइटी नहीं है। अरे वो पता नहीं कौन से वो फोटो लगाता है, मैं कहूँ यार ये फोटो क्यों लग रहा है, मेरा ही लगा दे फिर तो। मतलब उसमें वो जो एक कवर बनाने का जो एक उसकी खूबसूरती है ना, एस्थेटिक सेंस, वो केवल इंटरनेट पे जो सामग्री उपलब्ध है उसी को ढूंढता रहता है। तो ये तो, लेकिन जब जब हम तो कितनी बार इस हमारी वेबिनार श्रृंखला में इस बात को हम दोहरा चुके हैं कि जब जब नई तकनीक आती है अपने साथ नई चुनौतियां, नए जी खतरे लेके आती है। आप जी से सर, 5वीं क्लास में थे, और जब मैं 5वीं क्लास में था, हमें निबंध लिखवाया जाता था, विज्ञान अभिशाप है या वरदान। अब कोई नहीं लिखाता है। अब ये डिजिटल मीडिया अभिशाप है या वरदान, इस पर बहस आके टिक गई है। हम जब डिबेट बोलते थे तो ऐसे विषय हमारे होते थे। अब टीवी को कोई इडियट बॉक्स नहीं बोल रहा है। हम नहीं, इडियट बॉक्स बोलते थे जब जयपुर में टीवी आया 76 में, है ना, क्योंकि 59 में टीवी आया था, 12 साल तक तो दिल्ली में ही रहा। तो फिर विज्ञापनों पे, सेज की किताब है मेरे पास, टीवी विज्ञापनों का बच्चों पर प्रभाव, ये स्टडीज होती थी। अब कौन सी स्टडीज है, अब सारी चीजें एआई पे सिमट के आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि जो सोशल साइंटिस्ट हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इन मानवीय भावनाओं को, मैं कुछ अखबार देखता हूं, रोज कोई ना कोई खबर छप रही है न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन की डेट लाइन से कि वेस्टर्न के अंदर बच्चों की, युवाओं की क्या स्थिति हो गई है, पारस्परिक संवाद खत्म हो गया है, और वो किस मेंटल उससे गुजर रहे हैं, ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, वो कितना वायलेंस उनमें हो गया है। बच्चों के खिलौने, वो गुड्डे गुड्डी पता नहीं कहाँ गए, वो गन आ गई और बच्चा डिशम, यही सीख रहा है वो। तो ये तो वैल्यूज बदलेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप उस पुरानी दुनिया में नहीं जा सकते। अब बिना नहीं, इसके नेट का सहारा लिए कवर डिजाइन हो ही नहीं सकता। गए वो जी सर। डिजाइनर सारे के सारे, मैं सारे थंबनेल एआई से बनवा रहा हूँ, है ना। जब दिक्कत आती है तो कैनवा का सहारा ले लेता हूँ थोड़ा बहुत, करना पड़ेगा आपको, कहीं इसके विकल्प है ही नहीं। और आपका एक सवाल था सर कि शिखर पे पहुंच गए हैं उसके बाद क्या? तो उस सर इसका आंसर मैं मैथ्स का आंसर फिजिक्स से देना चाहूंगा। जी फिजिक्स का सर, एक फॉर्मूला है स्टेट ऑफ रेस्ट इनर्शिया। तो यस कोई सर, भी चीज जब अपने स्थान से कहीं मूव करती है तो वापस अपने स्थान पे आती है। तो जीरो इज द बिगेस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा न्यूमेरिक हमारा जीरो है। तो शिखर से ऊपर शून्य है। तो मैं तो ये कहूंगा इसका आंसर ये बेस्ट है, शिखर से ऊपर शून्य है। तो अब लेकिन वो हमारे मनस पे डिपेंड करता है कि शून्य के आगे लगना है या शून्य के पीछे लगना अच्छे लगना है। है। बस ये आंसर। सही, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सूरज जी, आज ही खबर थैंक यू छपी सो है, मच। वो कपिल जी ने शुरू में कहा था ना, डिसास्टर की बात की थी, नेचुरल डिसास्टर। वो हाँ उत्तराखंड सर, में कोई बादल फटा है, हजारों जी सर, मकान उस बाढ़ में, मैं देख रहा था अभी न्यूज, ये जो किसी अखबार का ऐप है,
पूरा का पूरा पानी का बहाव, और एक के बाद एक जैसे ताश के पत्ते ढहते हैं ना, वैसे मकान ढह रहे हैं। उत्तरकाशी एक में सर, तरफ- उत्तरकाशी में। हाँ, बादल फटा है किसी गांव में, हजारों मकान ऐसे ढह रहे हैं, उसमें देख के दहशत होती है कि साहब कहाँ जा रहे हैं हम, इस सर क्लाइमेट को नहीं यहाँ संभाल पे पा मैं रहे। ऐड करूंगा कि असम में चेरापूंजी इज द एरिया जहाँ पे जी। मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन रिकॉर्डेड है। वहां पे सरकार ने ना एक्चुरियल साइंसेस को और ज्यादा पॉलिश करा है, जी क्योंकि वहां पे ज्योग्राफी है सर, ज्योग्राफी की वजह से प्रेसिपिटेशन है। यस तो सर। उस चीज का और कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रेडिक्टिव एनालिसिस इज द बेस्ट की। तो अगर हम डेटा साइंस को और डिजिटल मार्केटिंग को सही रूपरेखा दें तो एक अच्छा सर फ्यूचर प्रेडिक्ट वही सर, हो वो सकता अगर है ना, अगर यही सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है। जी अगर ऐसा हो जाए, अगर हम ये ध्यान रखें तो ये हो जाए, बस इसी अगर पे चिंतन कीजिए। चलिए इन्हीं शब्दों के नहीं साथ। सर। जी हाँ हाँ, कुछ जी कह रहे सर, हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी सर, वही वही चीज है सर। वो हाँ हाँ अगर जो है ना, जी अगर के आगे हम क्या कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी की संभावना कम कर रहे हैं। जी एआई यही काम करता है कि पॉसिबिलिटी की संभावना कम कर, जी। बस ये बात। थैंक यू सो मच सर चलिए इन्हीं एंड शब्दों के साथ अपन एवरीबॉडी। अब इसको वाइंड अप जी करते हैं, और मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करूंगा डॉक्टर आयुषी चोपड़ा को, जो भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के हेड के रूप में काम कर रही हैं और पूरे अपने डिपार्टमेंट को आप लीडरशिप दे रही हैं। इसके पहले आप मीडिया में भी आपका लंबा अनुभव रहा, और आजकल आप टीचिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आयुषी जी से अनुरोध करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। आयुषी जी। Thank you so much, Bhanavat sir. It's always my pleasure to be a part of this webinar. So firstly, hearing out this wonderful webinar given by Shri Kapil sir, I am actually mesmerized by the experiences and the opinions that you have shared on the new development of AI and how AI is emerging into different fields. एंड संजीव भनावत सर ने भी बहुत सही कहा कि हम जल्दी इसके स्लेव ना हो जाएं, तो इस पे भी हमें ध्यान रखना है, और कहीं ना कहीं काफी हद तक एआई इस चीज के लिए सक्सेसफुल भी हो रहा है। तो कपिल सर ने बहुत रीसेंट और लेटेस्ट टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, लोगों को बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंसेस दिए, ओपिनियंस के साथ शेयर करा, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा कोई जस्टिफाई इस टॉपिक को नहीं कर सकता था। सो थैंक यू सो मच कपिल सर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग अस टाइम। And next, I would like to thank Professor Bhanawat sir, Sanjeev Bhanawat sir, and MN Huda sir for visualizing and visioning this webinar series कि हम कहीं भी हो, कैसे भी हो, ट्रैफिक में हो, बट वेबिनार ज्वाइन करते हैं क्योंकि लर्निंग नेवर एंड्स, चाहे हम कहीं भी कहाँ भी पहुंच जाएं, बट लर्निंग एक ऐसा फेज है, और ये इंस्पिरेशन हमें भनावत सर से अच्छा कोई नहीं दे सकता। सो थैंक यू सो मच सर। और सभी मेरे ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया, एंड दे आर लर्निंग टू अ न्यू फेज, बीइंग इन द फर्स्ट ईयर दे हैव ज्वाइंड। एंड सबसे पहला टॉपिक ऐसा है जो मुझे लगता है भनावत सर बिल्कुल उनके इंटरेस्ट का है, बिल्कुल लेटेस्ट बिल्कुल। डेवलप टॉपिक है। तो इट वाज अ सक्सेसफुल वेबिनार। थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस एंड माय बैक एंड टीम। थैंक यू सो अच्छा, मच। एक और निवेदन करूंगा मैं कि अपनी अगली वेबिनार जो है 173 अगले 8 अगस्त को, और 8 अगस्त ऐतिहासिक दिन है। अगस्त क्रांति की बात सुनी होगी हमारे युवा पीढ़ी के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, करो या मरो, डू एंड डाई, महात्मा गांधी का नारा था। अगस्त, मैं तो क्योंकि बॉम्बे में हूँ, एक दिन जा रहा था तो वहां अगस्त क्रांति मार्ग देखा, वहीं से मुझे आइडिया आया कि क्यों नहीं इस बार इस 8 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने एक विषय रखा है, मीडिया एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन और मीडिया। ये तो ऐतिहासिक आंदोलन है, और मीडिया ने कैसे कवर किया, और इस पर बातचीत करेंगे आपसे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं कृपा शंकर चौबे, बहुत काम है उनका, वो अखबारों में बहुत लंबे समय तक काम किया और अब टीचिंग में आ गए हैं। तो उस दौर की जो पत्रकारिता थी, आप कल्पना कीजिए किस तरह से संघर्ष रहा होगा। अंडरग्राउंड प्रेस, और पहला रेडियो प्रसारण, उषा मेहता मात्र 22 साल की युवती, और उन्होंने किस तरह से छिप करके रेडियो प्रसारण किए। तो ये सब चर्चा पर उस दिन करेंगे। यही लिंक है, यही समय है, यही प्लेटफॉर्म है। तो जो भी इच्छुक है उन सबसे हमारा अनुरोध कि 8 अगस्त शाम को 5:30 बजे हमसे फिर जुड़िए। मीडिया और अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, इस विषय पर अपन इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत एक धन्यवाद। चीज मेरी और ओर से मैं भी। कहना चाहूंगा जी सर। कि न्यूमेरिक देखा जाए, मैथ्स का आंकड़ा देखा जाए तो 172 जो है 1 नंबर पे आता है।
तो ये वेबिनार तो एक नंबर होना ही था। तो थैंक यू एवरीवन ये टू बहुत मेक अच्छी इट व्याख्या नंबर की है 1। आपने और हमारा कैलकुलेशन मोटिवेशन। आपने करा, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच आयुषी मैम। तो एक नंबर जो है हिस्ट्री में काउंट हो गया अब ये, जी जी तो जी याद रखा जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल साहब, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। और अब जिन पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट फीडबैक लिंक दे दिया है और जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं वो अभी रुकें, और पुष्पेंद्र जी हैं वो उनको हेल्प करेंगे जिनको कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है। तो आगे का मंच पुष्पेंद्र जी संभालेंगे। थैंक यू। धन्यवाद बनावत सर आपको। सर धन्यवाद आपको। हाँ भाई सोनू, धन्यवाद। हमारे तरफ जो है ना बारिश होने की वजह से नेटवर्क में बार बार समस्याएं आ जा रही है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे आपके मगर साथ। आपको आपका एक चीज और अच्छा लगता है सर, आप जो पर्सनली जो मिलते हैं, जो पॉडकास्ट चालू किए हैं आप, वो देखते हैं यूट्यूब पर आपका। देखता हूँ नोटिफिकेशन आया हुआ है सर का, तो हमारे तरफ से भी सब्सक्राइब कर लिया है आपको। हमारे चलो। सर के कार्यपालक अधिकारी हैं नगर परिषद क्षेत्र के, उन्होंने कहा सजी बनावत सर का जो आप हमको चैनल सब्सक्राइब करवाए, काफी अच्छा नोटिफिकेशन सर का रहता है और संवाद बड़ा बेहतरीन रहता है। आज गया कार्यालय, तो मैंने अपना क्षेत्र का 3 ग्रुप चलाता हूँ जिसमें 3 से 4 हजार लोग हैं डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए। तो मैं जब भी आपका लिंक जब शेयर करता हूं तो मैं उसमें लिखता हूं जो पत्रकार बंधु हैं, कम से कम जो पत्रकार भाई इसे सुने, इसे समझे, इसे सीखें। तो ये जो हमेशा लिख के डालता हूं। तो सर ने आज मुझे कहा था कि संजीव बनावत सर कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैंने कहा था उनसे कि सर राजस्थान के निवासी हैं। और मुझे सर बहुत अच्छा लगा, आज मैं सर के मुंह से जब बड़ाई सुना तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि नहीं। अब मैं भी सर सुनता हूँ आपका जो लिंक रहता है, मैं शेयर भी कर देता हूँ चलिए, सारे अच्छा है, ग्रुप ये में। यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ेगी, है ना। थैंक यू सोनू। चलिए, अब पुष्पेंद्र जी आगे का जो गतिविधियां हैं, आगे का जो मंच है वो संभालेंगे और हमारे पार्टिसिपेंट्स को हेल्प करेंगे। थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स चैट बॉक्स में आपको एक लिंक शेयर किया गया है। आपने अगर अभी तक गूगल फॉर्म फीडबैक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप उसे फिल करिए। मेल आईडी का ध्यान रखिए, जो भी मेल आईडी आप डालेंगे सेम मेल आईडी पर आपको आपका सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव हो जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताएं। सर अभी तक कोई मेल रिसीव नहीं हुआ है, फॉर्म भरे 10-15 मिनट्स हो गए हैं। तो नाम चैट बॉक्स पे डाल दीजिए, मैं आपका सर्टिफिकेट कर लेता हूँ। ओके सर। मतलब देवी, मैं आपका ड्राइव लिंक चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके सर। थैंक यू। ये Sir, सर्वर even I don't get any certificate. ये सर्वर मैंने आपका ड्राइव लिंक भी शेयर किया है। ड्राइव Yes, लिंक sir. आपको मिल जाएगा, यहाँ से हम डाउनलोड करें। Okay, sir. Once you download your certificate, kindly leave this meeting. आशिका, दीप्ति त्रिपाठी, डॉक्टर बाला लकेंद्र, जानवी सेठी, जयश्री वेंकटेश, kindly fill the Google form.
Thank you so much, sir. राधिका, आपका सर्टिफिकेट मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है, वहाँ से पिक कर सकते Okay, sir. Thank you. हैं। पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया है तो आप ये मीटिंग छोड़ सकते हैं। आशिका, दीप्ति, डॉक्टर बाला लखेंद्र, जयश्री वेंकटेश, नितिका वाधवा, kindly generate your certificate.